हेलो भैया। आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए चैप्टर 2 आज हम देखेंगे, जिसका नाम है टेक्निक लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल, जो हमारे भाई एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली नई क्लासों की अपडेट आपको मिलती रहे। चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये हिंदू स्वराज है, जो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई है, उसमें हमारा ये जो चैप्टर है वो भी थोड़ा संकलित है। हमारा चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैं तो हमारे जो गांधी जी उनकी बातें कुछ पंक्तियाँ सुनाने वाला हूँ। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड knowing out of the bed in the child and man, body, mind and spirit। इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, जो इसका अर्थ क्या है, मतलब कि शिक्षा के मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य से शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। ये कथन महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को दर्शाता है। सरल हिंदी में इसका अर्थ है हमारा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो तथा उसके अंदर मौजूद अच्छे गुणों का पूर्ण विकास हो। अब हम जो कविता है, वो कविता चैप्टर है जो अपना थिंकिंग लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल, जो हमारे एम गांधी द्वारा लिखा गया है, उसको मैं आपको मोबाइल से द्वारा सुनाऊंगा और बाद में इसका जो हमारा इसका हिंदी अर्थ है उसको मैं आपको बताऊंगा। These two short passages are from M.K. Gandhi's autobiography, My Experiments with Truth. They deal with literary training, that which is concerned with training the faculties of the mind, and spiritual training, dealing with the training of the spirit and the inculcation of moral values. The reader should note how Gandhi's approach is a practical, open one, relying more on resources available to him than on a prescribed course. Again, the student body is a varied org, made up of people who speak different languages and belong to different backgrounds. Gandhi, as a teacher, is able to relate to the students because he has no ego problem. Gandhi wrote his autobiography in 2 volumes. The first volume was published in 1927, the second volume in 1929. The original was written in Gujarati. The section is about his life in Tolstoy farm when he was in South Africa and where he, along with other Indians, was building up a movement of resistance against racial discrimination. If you have not seen, do try to see Shyam Benegal's film The Making of the Mahatma. It will help you understand Gandhi's political ideas better. Literary training. Literary training, however, is a difficult matter. I had neither the resources nor the necessary literary equipment, and I had not the time I would have wished to devote to the subject. They exhausted at the end of the day, and I used to have the classes physical work that I was doing used to leave me thoroughly just when I was most in need of some rest. Instead, therefore, my being fresh for the class, I could with the greatest difficulty keep myself awake. The mornings had to be devoted to work on the farm and domestic duties, so the school hours had to be kept after the midday meal. There was no other time suitable for the school. BWE gave 3 periods at the most to literary training. Hindi, Tamil, Gujarati and Urdu were all taught, and tuition was given through the vernaculars of the boys. English was taught as well. It was also necessary to acquaint the Gujarati Hindu children with a little Sanskrit, and to teach all the children elementary history, geography and arithmetic. I had undertaken to teach Tamil and Urdu. The little Tamil I knew was required during voyages and in jail. I had not got beyond Pope's excellent Tamil handbook. My knowledge of the Urdu script was all that I had acquired on a single voyage, and my knowledge of the language was confined to the familiar Persian and Arabic works that I had learned from contact with Mussalman friends. Of Sanskrit I knew no more than I had learnt at the high school. Even my Gujarati was no better than that which one acquires at the school. Such was the capital with which I had to carry on. In poverty of literary equipment, my colleagues went one better than I, but my love for the languages of my country, my confidence in my capacity as a teacher, as also the ignorance of my pupils, and more than that, their generosity, stood me in good. The Tamil boys were all born in South Africa, and therefore knew very little Tamil, and did not know the script at all. So I had to teach them the script and the rudiments of grammar. That was easy enough.
My pupils knew that they could any day beat me in Tamil conversation, and when Tamilians, not knowing English, came to see me, they became my interpreters. I got along merrily, because I never attempted to disguise my ignorance from my pupils. In all respects, I showed myself to them exactly as I really was. Therefore, in spite of my colossal ignorance of the language, I never lost their love and respect. It was comparatively easier to teach the Mussalman boys Urdu. They knew the script. I had simply to stimulate in them an interest in reading and to improve their handwriting. These youngsters were for the most part unlettered and unschooled. But I found in the course of my work that I had very little to teach them beyond weaning them from their laziness. The little Tamil I knew was acquired during voyages and in jail. And supervising their studies. As I was content with this, I could pull on with boys of different ages and learning different subjects in one and the same classroom. Of textbooks, about which we hear so much, INC were FCLT. Avant. I do not even remember having made much use of the books that were available. I did not find it all necessary to load the boys with quantities of books. I have always felt that the true textbook or the pupil is his teacher. I remember very little that my teachers taught me from books, but I have now a clear recollection of the things they taught me independently of books. Children take in much more and with less labor through to their ears than through their eyes. I do not remember having read any book from cover to cover with my boys, but envied them, in my own language, all that I had digested from my reading of various books, and I dare say they are still carrying a recollection of it in their minds. It was laborious for them to remember what they learned from books, but what I imparted to them by word of mouth, they could repeat with the greatest ease. Reading was a task for them, but listening to me was a pleasure, when I did not bore them by failure to make my subject interesting. And from the questions that my talks prompted them to put, I had a measure of their power of understanding. Training of the spirit. The spiritual training of the boys was a much more difficult matter than their physical and mental training. I relied little on religious books for the training of the spirit. Of course, believed that every student should be acquainted with the elements of his own religion and have a general knowledge or own scriptures, and therefore I provided for such knowledge best I could. But that, to my mind, was part of the intellectual training. Long before I undertook the education of the youth stars of the Tolstoy farm, I had realized that the training of the spirit was a thing by itself. To develop the spirits is to build character and to enable one to work towards a knowledge of part of the training of the young, and that all training without God in self-realization. And I held that this was less an essential culture of the spirit was of no use, and might be even harmful. One am familiar with the superstition that self-realization is possible only in the fourth stage of LIFC, Siddha Sannyasa, renunciation. But it is a matter of common knowledge that those who defer preparation for this invaluable sea experience until the last of LIFC attain not SELF realization but old stage amounting to 8 second and pitiable childhood, living as a burden on this path. I have a full recollection that I hate CLD these because C. Van whilst I was teaching, in 1911-12, though I might not then have expressed them in identical language. How then was the spiritual training to be given? I made the children memorize and recite hymns, and read to them books on moral training. But that was far from satisfying me. As I came into closer contact with them, I saw that it was not through books that one could impart training of the spirit. Just as physical training was to be imparted through physical exercise, and intellectual through intellectual exercise, even so the training of the spirit was possible only through the exercise of the spirit. And the exercise of the spirit entirely depended on the life and character of the teacher. The teacher had always to be mindful of his P's and Q's, whether he was in the midst of his boys or not. It is possible for a teacher situated miles away to affect the spirit of the pupils by his way of living. It would be idle for me, I were a liar, to teach boys to tell the truth. A cowardly teacher would never succeed in making his boys valiant, and a stranger to self-restraint could never teach his pupils the value of self-restraint. I saw, therefore, that I must be an eternal object lesson to the boys and girls living with me. They thus became my teachers, and I learned I must be good and live straight, if only for their sakes. I may say that the increasing discipline and restraint I imposed on myself at Tolstoy farm was mostly due to those words of mine. One of them was wild, unruly, given to lying, and quarrelsome. On one occasion he broke out most violently. I was exasperated. I never punished my boys, but this time I was very angry. I tried to reason with him, but he was adamant and even tried to overreach me. At last, I picked up a ruler lying at hand and delivered a blow on his arm. I trembled as I struck him. I dare say he noticed it. This was an entirely novel experience. FCR them all.
The boy cried out and begged to be forgiven. He cried not because the beating was painful to him, he could, if he had been so minded, have paid me back in the same coin, being a stoutly built youth of 17. But he realized my pain in driven to this violent resource. Never again after this then did he disobey me. But I still repent that violence. I am afraid I exhibited before him that day not the spirit, but the brute in me. I have always been opposed to corporal punishment. I remember only one occasion on which I physically punished one of my sons. I have, therefore, never until this day been able to decide whether I was right or wrong in using the ruler. Probably it was improper, for it was prompted by anger and a desire to punish. Had it been an expression only of my distress, I should have considered it justified. But the motive in this case was mixed. This incident set me thinking and taught me a better method of correcting students. I do not know whether that method would have availed on the occasion in question. The youngster soon forgot the incident, and I do not think he ever showed great improvement. But the incident made me understand better the duty of a teacher towards his pupils. Case of misconduct on the part of the boys often occurred after this, but INC were resorted to corporal punishment. Thus, in my endeavor to impart spiritual training to the boys and girls under me, I came to understand BCT and better THC power of the spirit. ये जो आपका चैप्टर था आपने मोबाइल के द्वारा सुना। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है मेरा हिंदी में। ऐसे तो आपका ये हमारा चैप्टर 2 है, लेकिन जो आपकी बुक है द मैनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, उसका ये चैप्टर 3 है। चैप्टर का जो हिंदी नाम है वो ये है पचीसन साहित्यिक और आध्यात्मिक, जो जिसे लेखक है हमारे M.K. गांधी। सबसे पहले हम भूमिका जानेंगे, जो हमारे भूमिका का हिंदी अर्थ जानेंगे पहले हम। वैसे तो आपकी जो बुक है ये द मैनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर तस्वीर जैन द्वारा जो लिखी है, इसकी जो पीडीएफ है आपको बच्चों ने ग्रुप में भेजी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। एक बार आपने चैप्टर आपका आप एक बार खुद भी पढ़ें मुझसे। वैसे हम तो पढ़ाएंगे सही, लेकिन आप भी एक बार पढ़िए खुद। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताना रहा हूँ। ये दोनों छोटे गद्यान M.K. गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग से लिए गए हैं। इनमें साहित्यिक प्रशिक्षण और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है। साहित्यिक प्रशिक्षण का संबंध मन की क्षमताओं और विचारों से विकास से है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण आत्मा के विकास तथा नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने से संबंधित है। गांधी जी का तरीका व्यवहारिक और खुला था। वे किसी निश्चित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहने के बजाय उपलब्ध साधनों का अधिक उपयोग करते थे। विद्यार्थियों का समूह विविध था। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते थे। गांधी जी एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों से आसानी से जुड़ पाते थे, क्योंकि उनमें अहंकार की भावना नहीं थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी थी। पहला भाग है 1927 में और दूसरा भाग है 1929 में प्रकाशित हुआ। मूल आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ये भाग दक्षिण अफ्रीका के टोचकोए फॉर्म में गांधी जी के जीवन के संबंधित है। वहाँ वे अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण कर रहे थे। जो हमारी ये 2 भाग, उसका हम पहला भाग पढ़ेंगे आज। पहले हम पहला भाग पढ़ेंगे साहित्यिक प्रशिक्षण लिटरेचरी ट्रेनिंग। साहित्यिक प्रशिक्षण कठिन विषय था। गांधी जी कहते हैं कि उनके पास न तो पर्याप्त साधन थे और न ही आवश्यक साहित्यिक ज्ञान योग्यता। इसके अलावा उनके पास इस विषय को देने के लिए उतना समय भी नहीं था जितना वे चाहते थे। वे दिन भर शारीरिक कार्य करते थे, जिसके कारण दिन के अंत तक वे बहुत थक जाते थे। उनकी चर्चाएं भी अक्सर उसी समय होती थी जब उन्हें सबसे अधिक आराम की आवश्यकता होती थी। इसलिए चर्चा के लिए पूरी तरह तरोताजा रहने के बजाय उन्हें बहुत कठिनाई के साथ पढ़ाने के लिए तैयार होना पड़ता था। सरल शब्दों में कहते गांधी जी के सामने साहित्य पढ़ाने में 3 मूल कठिनाइयाँ थी। पहली इसमें पर्याप्त साधनों का अभाव, दूसरा है आवश्यक साहित्यिक प्रशिक्षण का अभाव,
समय और आराम की कमी, क्योंकि वे दिन भर शारीरिक कार्य करते थे। इसका जो निष्कर्ष अपना निकलता है, गांधी जी का साहित्यिक प्रशिक्षण का तरीका परिस्थितियों से अनुसार व्यवहारिक था। उन्होंने सीमित साधनों और समय के बावजूद विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रयास किया। सुबह का समय खेत के काम और घरेलू कार्यों के लिए देना पड़ता था, इसलिए विद्यालय के समय को दोपहर के भोजन से बाद रखा जाता था। विद्यालय के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपयुक्त समय नहीं था। हम साहित्यिक प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक 3 पीरियड देते थे। हिंदी, तमिल, गुजराती और उर्दू सभी पढ़ाई जाती थी और लड़कों की मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। गुजराती, हिंदू बच्चों को थोड़ी सी संसद से परिचित कराना भी आवश्यक था। इसके अलावा सभी बच्चों को प्रारंभिक इतिहास, भूगोल और अंकगणित पढ़ाया जाता था। मैंने तमिल और उर्दू पढ़ाने का दायित्व लिया था। तमिल का थोड़ा सा ज्ञान मैंने यात्राओं और जेल में रहते हुए प्राप्त किया था। मेरे पास पोप की प्रसिद्ध तमिल एंड बुक से आगे तमिल का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। उर्दू की लिपि का मेरा ज्ञान भी केवल एक यात्रा के दौरान प्राप्त हुआ था। भाषा से संबंध में मेरा ज्ञान उन सामान्य फारसी और अरबी पुस्तकों तक सीमित था जिन्हें मैंने अपने मुस्लिम मित्रों के संपर्क से सीखा था। संसद का ज्ञान भी उतना ही था जितना मैंने हाई स्कूल में सीखा था। यहाँ तक कि मेरी गुजराती भी स्कूल में सीखी हुई गुजराती से बेहतर नहीं थी। ऐसी ही योग्यता से सारे मुझे अपना काम आगे बढ़ाना था। साहित्यिक ज्ञान के मामले में मेरे सहकर्मी मुझसे कुछ बेहतर थे, लेकिन अपने देश की भाषाओं के प्रति मेरा प्रेम, शिक्षक के रूप में अपनी क्षमता पर मेरा विश्वास, मेरे विद्यार्थियों की अजानता और उसके भी अधिक उनकी उदारता ने मेरी बहुत सहायता की। तमिल लड़के सभी दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, इसलिए वे तमिल बहुत कम जानते थे और तमिल की लिपि तो बिल्कुल नहीं जानते थे। इसलिए मुझे उन्हें तमिल की लिपि और व्याकरण की प्रारंभिक बातें सिखानी पड़ी। यह कारण काफ़ी आसान था। मेरे विद्यार्थी जानते थे कि वे किसी भी दिन तमिल बातचीत में मुझे हरा सकते हैं। जब ऐसे तमिल लोग मुझसे मिलने आते जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो मेरे विद्यार्थी ही उनसे दुबाचिक ये बन जाते थे। आगे हमारा, मैं उनके साथ आसानी से घुल मिल गया, क्योंकि मैंने कभी भी अपने विद्यार्थियों से अपनी अजानता छिपाने की कोशिश नहीं की। हर रत्ती से मैंने उनके सामने स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत किया जैसा मैं वास्तव में था। इसलिए भाषा के बारे में अपनी बहुत बड़ी अजानता के बावजूद मैंने कभी उनका प्रेम और सम्मान नहीं खोया। मुस्लिम लड़कों को उर्दू पढ़ाना अपेक्षाकृत आसान था। वे उर्दू की लिपि जानते थे। मुझे केवल उनमें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करनी थी और उनकी अर्थलिपि सुधारनी थी। इन युवकों में अधिकांश अशिक्षित और अनपढ़ थे, लेकिन अपने काम के दौरान मैंने पाया कि मुझे उन्हें बहुत कम पढ़ाना था। मुझे मुख्य रूप से उन्हें आलस्य से दूर करना था। मुख्य भाव के इस अंश में लेखक अपने शिक्षक के रूप में अनुभव बताते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें तमिल, उर्दू, संस्कृत और गुजराती का बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। फिर भी ईमानदारी, आत्मविश्वास, विद्यार्थियों से प्रति प्रेम और उनके सहयोग से वे सफल शिक्षक बने और उनके अध्ययन की देख-रेख करना। चूँकि मैं इसके संतुष्ट था, इसलिए मैं अलग-अलग आयु से और अलग-अलग विषय पढ़ने वाले लड़कों को एक ही कक्षा में पढ़ा सकता था। पाठ्यपुस्तकों के बारे में आगे लिखा हुआ है। पाठ्यपुस्तकों के बारे में जिनकी आजकल बहुत चर्चा होती है, मुझे कभी उनकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने उपलब्ध पुस्तकों का बहुत अधिक उपयोग किया हो। मुझे लड़कों पर ढेर सारी किताबों का बोझ डालना बिल्कुल आवश्यक नहीं लगता था। मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि विद्यार्थी की सच्ची पाठ्यपुस्तक उसका शिक्षक होता है। मुझे बहुत कम याद है
कि मैं शिक्षकों ने मुझे किताबों से अच्छा पढ़ाया था, लेकिन मुझे आज भी उन बातों की इत्पत याद है जो उन्होंने मुझे बिना किताबों की सहायता से स्वयं समझाकर सिखाई थी। बच्चे अपनी आँखों की अपेक्षा कानों से माध्यम से बहुत अधिक और कम मेहनत में सीख लेते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने लड़कों के साथ कोई पूरी किताब शुरू से अंत तक पढ़ी हो, लेकिन मैंने विभिन्न पुस्तकों के जो कुछ पढ़कर समझा था, उसे अपनी भाषा में वो उन्हें समझाया। मुझे विश्वास है कि वे आज भी उन बातों को अपने मन में याद किए हुए हैं। किताबों से पढ़ी हुई बातों को याद रखना उनके लिए कठिन था, लेकिन जो बातें मैंने उन्हें मौखिक रूप से समझाई, वे उन्हें बहुत आसानी से दोहरा सकते थे। पढ़ना उनके लिए एक काम था, लेकिन मेरी बातें सुनना उनके लिए आनंददायक था। बशर्ते मैं अपने विषय को रोचक बनाने में असफल होकर उन्हें उपाता नहीं था, और मेरी बातचीत से जो प्रश्न उनके मन में उठते थे और वे मुझसे पूछते थे, उनसे मुझे उनके समझने की क्षमता का अंदाज़ा हो जाता था। अब हम पढ़ेंगे आत्मा का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ द स्पिरिट, जो हमारा दूसरा भाग है। लड़कों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनके शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन विषय था। आत्मा से प्रशिक्षण के लिए मैंने धार्मिक पुस्तकों पर बहुत कम निर्भरता रखी। बेशक मेरा विश्वास था कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने धर्म के मूल सिद्धांतों से परिचित होना चाहिए और अपने धर्मग्रंथों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें ऐसा ज्ञान देने की व्यवस्था की, लेकिन मेरे विचार में यह केवल बौद्धिक प्रशिक्षण का एक हिस्सा था। वे फॉर्म के बच्चों की शिक्षा का कार्य शुरू करने से बहुत पहले ही मुझे ये समझ में आ गया था कि आत्मा का प्रशिक्षण अपने आप में एक अलग विषय है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना और व्यक्ति को ईश्वर से ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने योग्य बनाना। मेरा दृढ़ विश्वास था कि ये युवाओं के प्रशिक्षण का एक अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। यदि आत्मा का विकास किए बिना केवल अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाए, तो ऐसी सारी शिक्षा निरर्थक हो सकती है और कभी-कभी हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। संक्षेप में मुख्य विचार देखिए। विद्यार्थी के लिए शिक्षक ही सबसे महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक है। बच्चे सुनकर अधिक आसानी से सीख सकते हैं। केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शिक्षक को विषय को रोचक बनाकर समझाना चाहिए। प्रश्नों के विद्यार्थियों की समझ का पता चलता है। शिक्षा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास तीनों आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, ईश्वर का ज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। मैं उस अंधविश्वास से परिचित हूँ कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ इंस्पिरेशन केवल जीवन की सोती तथा संन्यास त्याग में ही संभव है। लेकिन यह सामान्य ज्ञान की बात है कि जो लोग इस अमूल्य अनुभव की तैयारी जीवन से अंतिम क्षण तक टाल देते हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता, बल्कि ऐसा बुढ़ापा मिलता है जो दूसरे और दयनीय बचपन से समान होता है और जिसमें व्यक्ति इस धरती पर दूसरों के लिए बोझ बनकर रह जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 1911 से 1912 में पढ़ा रहा था, तब भी मेरे विचार ऐसे ही थे। यद्यपि उस समय मैंने उन्हें बिल्कुल इसी भाषा में व्यक्त नहीं किया था। तो फिर ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण कैसे दिया जाना चाहिए था? मैंने बच्चों को भजन याद करवाए और उनका पाठ करवाया तथा नैतिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकें पढ़कर सुनाई, लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। जब मैं बच्चों से अधिक निकट संपर्क में आया, तो मैंने देखा कि आत्मा का प्रशिक्षण पुस्तकों से माध्यम से नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक व्यायाम से और बौद्धिक प्रशिक्षण बौद्धिक अभ्यास से दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रशिक्षण भी केवल आत्मिक अभ्यास से द्वारा ही संभव है और आत्मा का यह अभ्यास पूरी तरह शिक्षक के जीवन और चरित्र पर निर्भर करता है। शिक्षक को हमेशा अपने आचरण के प्रति सावधान रहना पड़ता है, चाहे वो बच्चों के बीच हो या उनसे दूर। एक शिक्षक जो मीलों दूर हो, अपने जीवन जीने के तरीके
से भी अपने विद्यार्थियों की आत्मा को प्रभावित कर सकता है। यदि मैं स्वयं झूठा होता तो मेरे लिए लड़कों को सत्य बोलना सिखाना व्यर्थ होता। एक डरपोक शिक्षक कभी अपने विद्यार्थियों को साहसी नहीं बना सकता, और जो व्यक्ति स्वयं आत्म संयम से अनजान हो वह अपने विद्यार्थियों को आत्म संयम का महत्व नहीं सिखा सकता। इसलिए मैंने समझा कि मुझे अपने साथ रहने वाले लड़के और लड़कियों के लिए हमेशा एक जीवित उदाहरण आदत बनना होगा। इस प्रकार वे मेरे शिक्षक बन गए और मैंने सीखा कि मुझे अच्छा आचरण करना और ये सही जीवन जीना चाहिए। कम से कम उनके हित के लिए मैं कह सकता हूँ कि थोथ कोए कौम में मैंने अपने ऊपर जो अनुशासन और संयम बढ़ाया उसका मुख्य कारण मेरे साथ रहने वाले वे बच्चे ही थे। उनमें से एक लड़का बहुत उग्र, अनुशासीन, झूठ बोलने वाला और झगड़ालू था। एक अवसर पर उसने बहुत अधिक उग्र व्यवहार किया और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कभी अपने लड़कों को दंड नहीं दिया था, लेकिन उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा और यहाँ तक कि मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करने लगा। अंत में मैंने पास पड़ी एक पुट पट्टी उठाई और उसके हाथ पर मार दिया। उसे मारते समय मेरे हाथ काँप रहे थे। मुझे लगता है कि उसने यह बात देख ली थी। यह उन सभी के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वह लड़का रो पड़ा और मुझसे क्षमा मांगने लगा। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि मारने से उसे बहुत दर्द हुआ था। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि मुख्य संदेश से पहले हम जान लेते हैं। इस अंश में महात्मा गांधी ये समझाते हैं कि बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा केवल किताबों से नहीं दी जा सकती। शिक्षा का अर्थ यहाँ जीवन, दायित्व, तथ्यनिष्ठा, आत्म संयम और व्यवहार ही विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा पाठ होता है। तो हम आगे देखेंगे। वह 17 वर्ष का मजबूत शरीर वाला युवक था और उसने उसी तरह मुझे जवाब दिया, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि मुझे उस कठोर उपाय का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था और मुझे इससे बहुत पीड़ा हुई थी। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरी अवज्ञा नहीं की। फिर भी मुझे उस हिंसा पर आज भी पछतावा है। मुझे डर है कि उस दिन मैंने उसके सामने अपने भीतर की आत्मा की शक्ति नहीं बल्कि पशुता का प्रदर्शन किया था। मैं हमेशा के शारीरिक दंड से विरोध में रहा। मुझे केवल एक ही अवसर याद है जब मैंने अपने किसी पुत्र को शारीरिक दंड दिया था। इसलिए उस दिन तक मैं यह तय नहीं कर पाया था कि पैमाने से उसे दंड देना सही था या गलत। संभवतः मेरा ऐसा करना अनुचित था, क्योंकि उससे पीछे क्रोध और दंड देने की इच्छा थी। यदि वह केवल मेरे दुख की अभिव्यक्ति होती तो मैं उसे उचित मानता, लेकिन इस मामले में मेरी भावना और उद्देश्य दोनों मिले जुले थे। अब आगे देखेंगे। इस घटना ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया और विद्यार्थियों को सुधारने का एक बेहतर तरीका सिखाया। मुझे नहीं पता कि उस अवसर पर वह तरीका काम करता या नहीं। वह लड़का जल्द ही उस घटना को भूल गया और मुझे नहीं लगता कि उसके व्यवहार में कोई विशेष सुधार आया। लेकिन इस घटना ने मुझे अपने विद्यार्थियों के प्रति एक शिक्षक के कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की। इसके बाद भी लड़कों की ओर से अनुशासनहीनता की घटनाएं अक्सर होती रही, लेकिन मैंने फिर कभी शारीरिक दंड का सहारा नहीं लिया। इस प्रकार अपने अधीन रहने वाले लड़के लड़कियों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के प्रयास में मैं धीरे धीरे आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति की महत्ता को अधिक अच्छी तरह समझने लगा। इसका मुझे संदेश हमारा इस अंश में लेखक यह बताता है कि क्रोध या बदला लेने की भावना से दिया गया शारीरिक दंड उचित नहीं है। शिक्षक का कर्तव्य विद्यार्थियों को हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम, आत्मसंयम
समझ और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से सुधारना है। ये हमने 4 देखा जो हमारे चैप्टर था थिंकिंग लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल जो हमारे एकमी दादी द्वारा लिखा गया है। इसे हम समझ देखेंगे हिंदी में, लेकिन इसकी जो समरी है हमारे मनवी सीरीज में इंग्लिश में भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं। ये जो हमारे चैनल है ये भी हिंदी मीडियम का ही है। पाठ का परिचय। लड़कों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनके शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से नहीं से कहीं अधिक कठिन मामला था। आत्मा से प्रशिक्षण के लिए मैंने धार्मिक पुस्तकों पर बहुत कम भरोसा किया। निसंदेह मेरा मानना था कि प्रत्येक छात्र को अपने धर्म के तत्वों के परिचित होना चाहिए और उसे अपने धर्म ग्रंथों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए मैंने यथासंभव ऐसा ज्ञान प्रदान किया, लेकिन मेरी राय में वह बौद्धिक प्रशिक्षण का हिस्सा था। तो कोई फॉर्म के युवाओं को शिक्षा देने के बहुत पहले ही मुझे एहसास हो गया था कि आत्मा का प्रशिक्षण अपने आप में एक चीज़ है। आत्मा को विकसित करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना और व्यक्ति को ईश्वर के ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में काम करने में सक्षम बनाना। और मेरा मानना था कि यह युवाओं के प्रशिक्षण का एक अनिवार्य इच्छा था, और आत्मा के संगति के बिना अब सभी प्रशिक्षण बेकार थे और हानिकारक भी हो सकते थे। अब आगे हम देखेंगे। मैं इस अंधविश्वास से परिचित हूँ कि आत्म साक्षात्कार केवल जीवन के चौथे चरण यानी संन्यास में ही संभव है, लेकिन यह सामान्य ज्ञान की बात है कि जो लोग जीवन के अंतिम चरण तक इस अमूल्य अनुभव की तैयारी को स्थगित कर देते हैं, वे आत्म साक्षात्कार नहीं बल्कि बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं, जो एक दूसरे और दयनीय बचपन के बराबर होता है और इस धरती पर एक बोझ के रूप में रहते हैं। मुझे पूरा स्मरण है कि जब मैं 1911 से 1912 में अध्यापन कर रहा था, तब भी मेरे यह विचार थे, हालांकि तब मैंने उन्हें समान भाषा में व्यक्त नहीं किया होता। फिर यह आध्यात्मिक प्रशिक्षण कैसे दिया जाना था। मैंने बच्चों को भजन याद करने और सुनाने को कहा और उन्हें नैतिक प्रशिक्षण की किताबें पढ़कर सुनाई, लेकिन वह मुझे संतुष्ट करने में कोसों दूर था। जैसे जैसे मैं उनके निकट संपर्क में आया, मैंने देखा कि आत्मा का प्रशिक्षण किताबों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक व्यायाम के माध्यम से और बौद्धिक प्रशिक्षण बौद्धिक व्यायाम से माध्यम से दिया जाना था, उसी प्रकार आत्मा का प्रशिक्षण केवल आत्मा के अभ्यास से माध्यम से ही संभव था, और आत्मा का अभ्यास पूरी तरह से प्रशिक्षक के जीवन और चरित्र पर निर्भर करता था। शिक्षक को हमेशा अपने पी और क्यों के प्रति सचेत रहना पड़ता था, चाहे वह अपने लड़कों के बीच में हो या नहीं। मीलों दूर स्थित शिक्षक के लिए अपने रहन सहन के विद्यार्थियों की भावना को प्रभावित करना संभव है। अगर मैं झूठा होता तो लड़कों को सच बोलना सिखाना मेरे लिए बेकार होता। एक कायर शिक्षक कभी भी अपने लड़कों को बहादुर बनाने में सफल नहीं होगा, और आत्म संयम के लिए अजनबी कभी भी अपने विद्यार्थियों को आत्म संयम का मूल्य नहीं सिखा सकता है। इसलिए मैंने देखा कि मुझे अपने साथ रहने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए एक वस्तु पाठ बनना चाहिए। इस प्रकार वे मेरे टीचर बन गए, और मैंने सीखा कि मुझे अच्छा बनना चाहिए और सीधा जीवन जीना चाहिए। यदि केवल उनके लिए ही मैं कह सकता हूँ कि तो यहाँ पर लेना एक बार शब्द नहीं तो कोई फॉर्म में मैंने खुद पर जो अनुशासन और संयम बढ़ाया वो ज़्यादातर मेरे उन तिथियों के कारण था। उनमें से एक जंगली उपद्रवी
झूठ बोलने वाला और झगड़ालू था। एक अवसर पर वह सबसे अधिक हिंसक रूप से भड़क उठा। मैं हताश हो गया था। मैंने अपने लड़कों को कभी सजा नहीं दी, लेकिन इस बात में बहुत गुस्से में था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ा रहा और उसने मुझ पर हावी होने की भी कोशिश की। आखिरकार मैंने हाथ में पड़ा एक रूलर उठाया और उसकी बाह पर एक झटका मारा। जैसे ही मैंने उस पर प्रहार किया, मैं काँप उठा। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि उसने इस पर ध्यान दिया। उन सभी के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था। लड़का रोया और माफ़ करने की भीख मांगी। वह इसलिए नहीं रोया क्योंकि पिटाई उसके लिए दर्दनाक थी। यदि वह इतना समझदार होता तो 17 वर्ष का अट्टा-कट्टा युवक होते हुए भी मुझे उसी चिक्के में वापस कर वापस कर सकता था। उस चिक्के में वापस कर सकता था। लेकिन उन्हें इस हिंसक संसाधन की ओर प्रेरित होने में मेरे दर्द का एहसास हुआ। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरी अवज्ञा नहीं की, लेकिन मुझे अब भी उस हिंसा पर पछतावा है। मुझे डर है कि उस दिन मैंने उसके सामने अपने भीतर की आत्मा नहीं, बल्कि वास्तविकता का प्रदर्शन किया। मैं सदैव शारीरिक दंड से विरोधी रहा हूँ। मुझे केवल एक ही अवसर याद है जब मैंने अपने एक बेटे को शारीरिक दंड दिया था। इसलिए मैं आज तक कभी यह निर्णय नहीं कर पाया कि रूलर का उपयोग करने में मैं सही था या गलत। संभवतः यह अनुचित था क्योंकि यह क्रोध और दंड देने की इच्छा से प्रेरित था। यदि यह केवल मेरी व्यथा की अभिव्यक्ति होती तो मुझे इसे उचित मानना चाहिए था, लेकिन इस मामले में मकसद निश्चित था। एक घटना ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे साथों को सुधारने का एक बेहतर तरीका सिखाया। मैं नहीं जानता कि उस विधि का उस अवसर पर लाभ हुआ या नहीं। युवा खिलाड़ी जल्द ही इस घटना को भूल गया और मुझे नहीं लगता कि उसने कभी कोई बड़ा सुधार दिखाया हो। लेकिन इस घटना ने मुझे एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझा। इसके बाद अक्सर लड़कों की ओर से दुर्व्यवहार के मामले सामने आते रहे, लेकिन मैंने कभी शारीरिक दंड का सहारा नहीं लिया। इस प्रकार मेरे अधीन लड़कों और लड़कियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने से मेरे प्रयास में मैं आत्मा की शक्ति को बेहतर से बेहतर समझने लगा। ये हमने देखा इसका सारांश। हमारा जो चैप्टर है उसका हमने सारांश देखा। उससे पहले इसका हमने अर्थ देखा और उससे पहले हमने जो हमारा चैप्टर था वो हमने पढ़ा। इससे संबंधी आपके जो डाउट है आप अपनी जो मैम है हिंदी वाली मैम हीरा मैम मैम से पूछ सकते हैं। तब तक हमारी कोई इंग्लिश का दूसरा कोई प्रोफेसर या मैम कोई वहाँ उपस्थित नहीं होते, तब तक आप अपनी जो हीरा मैम से इससे डाउट है जो आपके जो चैप्टर है उससे पूछ सकते हैं, संबंधित जो डाउट है आपके। हम अभी तो वैसे ही आपको बस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, जो मेन एग्ज़ाम होंगे इंग्लिश हिंदी का, उससे पहले आपको मैं एग्ज़ाम टाइम या उसको क्लासेस लाएंगे उसमें हम एक से जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टरों के ग्रामर के जो क्वेश्चन है उसके वो मैं आपको कराऊंगा उस समय। देखिए अभी तो आप मेरे पास भैया मैं आपको ऐसे ही हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं थोड़ा कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा, जिससे आपको एग्ज़ाम में इनके संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं अपने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको करने में परेशानी न हो। आज आज तक के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।